सभी को नमस्कार। ये क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 हम क्यूब्स और क्यूब रूट को डिस्कस करेंगे। यहाँ फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन। इसके पहले 6 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें अबाउट दैट इज द इंडियन मैथमेटिशियन. This is a story about one of the India's great mathematical genius, S. Ramanujan. Once another famous mathematician, Professor G.S. Hardy, came to visit him in a taxi whose number was 1729. While talking to Ramanujan, Hardy described this number a dull number. उसने कहा कि 1729 एक dull number मतलब बहुत ही बेकार number है. There is no use of that number. तो Ramanujan quickly pointed out that 1729 was indeed interesting. जो नंबर 1729 है टैक्सी नंबर, दैट इज indeed interesting number. बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है. He said it is the smallest number that can be expressed as a sum of two cubes in two different ways. रामानुजन ने कहा कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम दो नंबर्स के क्यूब के सम में दो अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे 1729 जिसको हम लिख सकते हैं 1728 प्लस 1 जो कि 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब. That is another way 1000 plus 729 1010 cube and 729 is 9 cube. So 1729 can be expressed as the sum of two numbers, cube of sum of two numbers in two different ways. So that was the mathematical genius S. Ramanujan, who pointed out about the number 1729, quickly pointed out. So let us come to our main topic, what we have to discuss. So 1729 has since been known as the Hardy-Ramanujan number. तब से हम इस नंबर को Hardy-Ramanujan number कहते हैं 1729. Even though this feature of 1729 was known more than 300 years before Ramanujan. रामानुजन से 300 साल पहले भी इस फीचर को बताया गया था कि 1729 या 1729 को हम सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में दो डिफरेंट वे में हम लिख सकते हैं. बट स्टिल दिस नंबर वाज गिवन द नेम Hardy-Ramanujan नंबर. और इस तरह से और भी नंबर्स हैं, ये सिंगल नंबर नहीं है. तो Hardy-Ramanujan नंबर्स 179 के बाद भी ये तो स्मॉलेस्ट नंबर है. देयर आर इनफाइनाइट मेनी सच नंबर्स. क्यू आर 4104 जिसमें आप 2 और 16 के क्यूब को सम कर सकते हो. 9 या 15 के नंबर्स के क्यूब के को सम कर सकते हैं. फिर 13,832 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम दो नंबर्स के क्यूब के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टू डिफरेंट वेज आल्सो. So this was the introduction, the interesting story about S. Ramanujan, the mathematical genius of India. Let us start our topic. So what are the special about the numbers 1, 8, 27, 24, 64 जैसे हमने यहाँ पे numbers लिखे हैं. What are the special about these numbers? So we see that these numbers are obtained by multiplying a number thrice with itself. किसी भी नंबर को अपने आप से 3 times अगर हम मल्टीप्लाई करें, then the number got is the cube of the number. तो हम क्यूब कहते हैं उसको. ठीक है. तो यहाँ पे 1, 8, 27, 64, 25, 125, all these are that special number which are obtained by multiplying a number with itself thrice, 3 times. जैसे 1 into 1 into 1 1 हो गया, 2 into 2 into 2 8 हो गया, 3 into 3 into 3 27 हो गया, 4 into 4. All these numbers are the these special numbers which follow the pattern because these are obtained by multiplying a number with itself thrice, 3 times. So these are called as the perfect cubes. ये numbers को हम perfect cube number कहते हैं because these are obtained by multiplying a number with itself thrice. This is the table given. So can you say why they are named so? Because they are
obtained by multiplying thrice. Thrice means cube. और ज्योमेट्रिकली क्यूब क्या होता है? अगर आपने पहले पढ़ा होगा ज्योमेट्री के फॉर्म में, तो ज्योमेट्रिकली क्यूब इज ए solid shape which length, breadth and height all three are equal, and there are three dimensions. Three dimensions, that was called a cube. तो यहाँ भी इसको हम क्यूब कहते हैं. Okay? So each of them is obtained when a number is multiplied by taking it 3 times. अब देखिए नंबर्स को, यहाँ हमने लिखा है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये सारे 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, और ये हमने इसको 25 तक लिखा है, 125 जो कि 5 का क्यूब है. So 125 is a cube number. This is the cube of 5. अब क्या 4, 9 and 16 ये क्यूब नंबर्स हैं? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें उस नंबर्स के साथ तो हमको 4 मिले या 9 मिले या 16 मिले? So there are no numbers which are multiplied thrice to itself to get these numbers 4, 9 and 16 and 25. These are not the perfect cubes. ठीक है? अब जैसे 4 है तो 4 is 2 into 2, twice multiply करने पे मिल रहा है, तो वो स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर, नॉट द क्यूब. Similarly 9 is 3 into 3, 16 is 4 into 4. So these are the square number, not the cube numbers. अब देखिए यहाँ पे टेबल है, तो 1 से लेके 10 तक का हमने क्यूब यहाँ दिया हुआ है. 1 से लेके 4 तक क्यूब लिस्टेड है, और 5 से लेके 10 तक ब्लैंक है जिसमें फिलअप करना है. तो ऑलरेडी हमने टेबल बनाया हुआ है. 6 का 5 का क्यूब 125 है, 6 का 216 है, 7 343, 8 512, 512 क्यूब है यहाँ पे. 9 का 729 है, 10 का 1000 है. ठीक है, तो यहाँ अगर हम ये भी देखें कि वंस डिजिट क्या होती है, अगर नंबर में वंस डिजिट है तो क्यूब में वंस डिजिट क्या होगी. तो देखिए 1 के क्यूब में भी वंस डिजिट 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 के क्यूब में ये 7 आता है वंस डिजिट, 4 के क्यूब में 4 ही आता है, 5 के क्यूब में भी 5 आता है, 6 के क्यूब में भी 6 आता है, 7 के क्यूब में ये 3 आता है, 8 के क्यूब में 2 आता है, 9 के क्यूब में 9 आता है, और 0 है तो 0 ही रहेगा यहाँ पे. तो आप इसमें देखिए कि क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज में क्या मिलती है कि 1 के 1 है तो क्यूब में भी वंस डिजिट 1 है, 2 है तो क्यूब में वंस डिजिट 8 है, लेकिन अगर 8 है तो क्यूब में वंस डिजिट 2 है. यहाँ देखिए ये और ये 2 है, ठीक है, तो 2 है तो वंस डिजिट 8 है, और 8 है तो वंस डिजिट 2 है, तो दोनों इंटरचेंजेबल. यहाँ भी दोनों इंटरचेंजेबल ही है. लेकिन 3 में क्या है, 3 में अगर नंबर में वंस डिजिट 7 है, सॉरी 3 है, तो क्यूब में वंस डिजिट 7 है, और ये उल्टा भी है, अगर 7 है तो वंस डिजिट 3 हो जाएगा. बोथ आर इंटरचेंजेबल. लेकिन 4 में 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 9 में 9 है, तो ये सब नंबर्स देखिए कि इनमें सेम डिजिट वंस डिजिट मिलती है. ठीक है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7. तो वंस डिजिट में अगर नंबर 4 है तो उसके क्यूब में भी 4 आएगा, 5 है तो उसके क्यूब में भी 5 आएगा, 6 है तो उसके क्यूब में भी 6 आएगा, 9 है तो उसके क्यूब में भी 9 आएगा. देखिए 4 5 6 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1 ही होगा, 2 है अगर वंस प्लेस पे नंबर में तो क्यूब में 8 होगा, और नंबर में अगर वंस प्लेस प्लेस 8 है तो उसके क्यूब में वंस प्लेस 2 आएगा. सिमिलरली 3 and 7 they are interchangeable. तो ये वंस प्लेस से रिलेटेड हो गया कि अगर कोई नंबर है तो उसके क्यूब के वंस प्लेस में कौन सी डिजिट होगी, अगर नंबर के वंस प्लेस पे ये डिजिट है तो ये 1 से लेके 10 तक का क्यूब है. इसको आपको रिमेंबर करना होगा, याद भी करना होगा. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये ऑब्टेन किया गया है. ठीक है, अब देखिए ये 11 से लेके 20 तक के क्यूब्स हैं. ठीक है, अब इससे क्या है कि अगर आप पिछले वाले में भी देख सकते हैं कि जो ऑड नंबर्स हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इनके क्यूब्स भी ऑड नंबर्स हैं. 1 का क्यूब 1, 3 का 27, 5 का 125, 7 का 343, 9 का 729. These are the odd numbers. So cube of odd numbers are odd and cube of even numbers are even. Even number का cube even है, odd number का cube odd number है. कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं, आप देख सकते हैं. क्या पैटर्न्स है
तो सबसे पहले एडिंग कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, अगर हम कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करें तो हमको क्या मिलता है। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की अगर हम पैटर्न्स को देखें, जैसे 1, तो दैट इज 1 क्यूब, बट नेक्स्ट two odd numbers are 3 plus 5, that is 8, which is 2 cube. Next, 3 primes are, that is 7 plus 9 plus 11, this is 27, this is 3 cube. Next, 4 odd numbers are 13 plus 15 plus 17 plus 19. आप इनको ऐड करो तो 19 and 17 36, 36 और 15 51 और 13 64, that is 4 cube. तो आप इससे क्या एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिल रहा है कि जितने भी कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उसका क्यूब हमको मिल रहा है रिजल्ट में। जैसे 1 तो 1 है, लेकिन नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो ये 2 क्यूब आ गया। नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो 3 क्यूब आ गया। नेक्स्ट 4 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो 4 क्यूब आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, नेक्स्ट 5 मींस आफ्टर 19, दैट इज 21 plus 23 plus 25 plus 27 plus 29, so you will get 125. This is the cube of 5. So that is the interesting pattern. If you are adding n consecutive odd integers, then you will get n cube. Okay, ये ध्यान रहे, आप देख सकते हैं इसको, कितनी मतलब इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये। चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। अब जैसे स्क्वायर्स में या स्क्वायर रूट में भी हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टर्स करते थे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए या ये चेक करने के लिए कि द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो यहाँ भी हमको वही करना है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो हमको चेक करने के लिए क्या करना होगा कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना होगा, और अगर हर एक प्राइम 3-3 के ग्रुप में आता है देन दैट इज द परफेक्ट क्यूब। देख सकते हैं हम यहाँ पे। अब जैसे इस 243 ए परफेक्ट क्यूब, हमको पता करना है कि 243 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो 243 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे हम प्राइम फैक्टर करते आ रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 243 prime factor, now it is not divisible by 2 because one's digit is 3. Now check for the divisibility of 3. 3 से divisible है कि नहीं, 4 2 6 3 9, ये 3 से divisible है, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, again it is divisible by 3, तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, again divisible by 3, तो 3 9 जा 27, again divisible by 3 3 times, again divisible by 3 1. So prime factor of 243, that is 3 into 3 into 3 into 3 into 3. तो अगर हम 3-3 का ग्रुप बनाए, यहां तो बन रहा है बट दिस इज नॉट कंप्लीटेड। दो जो है प्राइम फैक्टर्स 3 के हैं जो कंप्लीट नहीं हो रहा, ट्रिपलेट या 3 का ग्रुप नहीं मिल रहा है। दिस मींस सिंस 3 is not in the group of 3, repeated prime factor of group of 3, therefore it is not a perfect. ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है इस केस में, ठीक है। अब क्या किया हमने, तो सिंपली हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए और उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिखा और देखा कि हर एक प्राइम फैक्टर 3-3 के ग्रुप में है कि नहीं। यहाँ एक 3 का ग्रुप बन रहा है, एक 3 का ग्रुप बन रहा है, 3 का 3 टाइम्स है, बट नेक्स्ट जो है 3 into 3, देयर इज 1 3 मिसिंग। अगर एक 3 यहाँ और होता तो अब ये भी 3 का ग्रुप बन जाता, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब हो जाता।
तो ये यहाँ पे तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन इसको हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 देन ये 3 3 का ग्रुप बन जाएगा और एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इस 392 ए परफेक्ट क्यूब, सबसे पहले हमको चेक करना है, इसके बाद इसमें एडिशनल क्वेश्चन है कि 392 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो हम यही काम करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। is 392 a perfect cube? 392. Let us make the prime factor. One's digit is 2, so it is divisible by 2. So 196. Again, one's digit is 6, divisible by 2. So this is 9, 8. Again, it is divisible by 2. So 4, 9. Now it is not divisible by 2, not divisible by 3, not divisible by 5. So next prime is 7. So it is divisible by 7. And again 7. This is 1. So this is 392. Its prime factor is 2 into 2 into 2 into 7 into 7. Okay. अब इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 into 2 into 2 into 7 into 7. अब अगर हम इसमें तीन तीन के ग्रुप्स बनाएं सेम प्राइम नंबर्स के, तो यहां से ये इसका भी बन रहा है, बट देयर इज ए मिसिंग फैक्टर जो नहीं है. So 7 is missing one of the factors. 7 is not in the group of 3. Therefore, it is not a perfect cube. Perfect cube. ये perfect cube नहीं है क्योंकि 7 का 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है. Only there are 2 prime factors of 7, 7 into 7. अगर एक 7 और होता तो वो perfect cube बन जाता. तो that 7 is missing. So the additional part of this question is, if not, find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube. अब नहीं है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है जो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्यूब बना दे, परफेक्ट क्यूब बना दे. तो दैट स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 7 टू मेक इट द ग्रुप ऑफ 3 फैक्टर्स ऑफ द 7. तो यहां अगर एक 7 और होता तो ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाता. तो हम क्या करेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 7. द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 7. अब वो 7 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 392 into 7, this is 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7. अब 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 63 1 64, 7 3 जा 21 और 21 और 6 7. तो 2744 है और ये हो गया 2 क्यूब into 7 क्यूब. अब ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया क्योंकि ये तीन तीन के ग्रुप बन जा रहे हैं यहाँ पे फैक्टर्स के प्राइम. So the least number to be multiplied to make it a perfect cube is the 7. 7 का एक फैक्टर मिसिंग है, इसलिए इसको हमने परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया. So let us check next example. What is the next one? Is 53,240 a perfect cube? 53,240. $53,240 is the number. We need its prime factor. Now one's digit is 0, so it is divisible by 2. So this is 2, 6, 6, 2, 0. Again divisible by 2. 1, 3, 3, 1, 0. Again divisible by 2.
6 6 5 5. Now it is not divisible by 3. अब सॉरी 2 से चेक करें तो 5 5 10 10 6 16 16 और 6 22 not divisible by 3. So next prime is 5 dividing by 5. 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 3 जा 15 5 1 जा 5. अब ये आगे वंस डिजिट 1 आ गया सो 5 से भी डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम 7 है 7 से चेक करें 7 1 जा 7 बच जाएगा 6 63 7 9 जा 63 1 हो गया नहीं डिविजिबल है. नेक्स्ट प्राइम इज 11 सो 11 1 जा 11 तो 11 और इसके बाद जो हो जाएगा 2 बचेगा 23 11 2 जा 22 और 1 20 ये हो जाएगा 11 से डिविजिबल. तो 11 से डिविजिबल होने के बाद 2 हो गया 23 11 2 जा 22 1 बच गया 11 ये again it is divisible by 11 so this is 11 and again 11 this is 1. So we have completed its prime factorization. Now the prime factorization of 53,240 is 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11 into 5. हमने इसको 3 3 का ग्रुप बना के लिखा है एक साथ जो 3 में आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं 3 में इसको हमने अलग कर दिया. तो इसमें क्या है कि एक 5 फैक्टर है जो कि 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. अब परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसमें नेक्स्ट क्या है इफ नॉट देन by which smallest natural number should 53,240 be divided so that the quotient is a perfect cube. तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए या तो हम 5 को भी 3 के फैक्टर के ग्रुप में ला दें 5 into 5 into 5 कर दें. उसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना 25 दो फैक्टर्स 5. लेकिन यहाँ पे हमको डिवाइड करने के लिए कहा गया है कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड. इसका मतलब हमको 5 को हटाना होगा तो भी परफेक्ट क्यूब बनेगा. सो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 5. सो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 to make a perfect cube. अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 3 2 4 0 by 5 और इधर क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 का एक ग्रुप बन जाएगा और फिर 11 into 11 into 11 का एक ग्रुप बन जाएगा. 5 को हमने डिवाइड कर दिया तो into 5 by 5 ये तो कट गया. सो वी गेट 5 1 जा 5 फिर 0 6 2 24 हो जाएगा तो 5 4 जा 24 80. तो 10,648 जो है 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11 मतलब 22 का ये क्यूब हो जाएगा 2 क्यूब 11 क्यूब. तो दिस इज नाउ परफेक्ट क्यूब. सो 5 इज द लिस्ट नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब. तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दो अलग अलग केसेस हैं. मल्टीप्लिकेशन के केस में हम क्या करते हैं कि उसको 3 का ग्रुप बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं कुछ प्राइम फैक्टर्स को जो मिसिंग फैक्टर्स हैं. और डिवीजन के केस में जो एक्स्ट्रा फैक्टर है जो 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है उसको हटाने के लिए हम डिवाइड करते हैं. तो दीज आर द केसेस. थैंक यू वेरी मच. अब ये इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे. तो आप सभी को धन्यवाद.